Hello, Namaskar, good morning, Sasyakal. Myself Kamal Sharma and welcome to Aryan Digital Classes. This video session goes for class 12. Is it clear? And this is the remaining part of previous video because I solved some of the questions of exercise 3.1 and some of the questions are left. Now in this video session we will discuss about that questions which we left in previous video, and we will study about the next exercise, the description of next exercise 3.2, where we will be solve about the operations of addition matrices, subtracting matrices, multiplication and divide also, and some of the properties of also matrices, some of the properties about सेट्स. मैंने ऑलरेडी 11th क्लास में आप लोगों को सेट्स की प्रॉपर्टीज बताई थी, आप लोगों बताई थी ना, एसोसिएटिव, कम्युनिकेटिव, वो यहाँ पे फिर से आने वाली है, लेकिन इस बार थोड़ी किसके लिए आएगी, मैट्रिसेज के लिए आएगी, तो वो उस चीज़ के बारे में हम थोड़ा सा लाइटली देखेंगे एक बार. तो बिफोर दैट वी हैव टू सोल्व द लेफ्ट क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस वीडियो. तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1. अच्छा, 3.1 की एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 7th करवाया था, और 7th क्वेश्चन के लिए ये कहा था कि आप लोगों को थोड़ा शॉर्टेज ऑफ टाइम के लिए मैंने थोड़ा सा इसलिए ये कहा था कि टाइम आपका थोड़ा सा कम था, उस क्वेश्चन को थोड़ा डिस्क्राइब करता तो, और थोड़ा सी आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए मैंने वो क्वेश्चन आपको घर से करने के लिए दिया था. और आई होप आप लोगों ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा. जिन स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन नहीं कर पाए, जिनको तो कोई भी प्रॉब्लम या इश्यू आया होगा, वो यहाँ पे अच्छे से क्लियर करिए. आपका फाइनल जो आंसर था 7th वाला क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को सॉल्यूशन दिया था, उसके 2 मैंने आप लोगों को a + b = 6 एंड ab = 8, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड मैंने आप लोगों को निकाला. राइट, एक बार फिर से मैट्रिक्स चेक कर लीजिए. a + b = 6 है एंड ab मतलब a22 = 8. राइट, मैंने इसको आप लोगों को कहा था कि यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 2 ways. If you want to make a square of first equation and after that putting the value of ab, right, that is the first method. And second method, you have to find the value of a or b from equation first, as you wish. If you want to find the value of a, then you can find the value a, and if you want to b, then you can make a value of b. फिर आप लोगों को क्या होता है, सब्स्टिट्यूट करनी होती है वैल्यू इक्वेशन सेकंड में. राइट, लेट मी चेक. मान लीजिए इस इक्वेशन की बात करते हैं, तो यहाँ से मैंने ले लिया, यहाँ था आपका a + b = 6, देन a = 6 - b. चाहे तो ये ले लो या भी ले लो, b = 6 - जो आपकी मर्जी है, आप लोग ले सकते हो. चाहे तो ये ले लीजिए, चाहे ये ले लीजिए, कोई सा एक लेना. मान लीजिए मैंने ये ले ली इक्वेशन थर्ड. राइट, तो मैं इसको एक बार रखता हूँ. What we have to do, b = 6 - a, putting the value of b in equation second. थर्ड से b की वैल्यू आपको सेकंड में सब्स्टिट्यूट करनी है. चाहे तो आप इसी लैंग्वेज को सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 2 राइट कर सकते हो, या पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 2. राइट, व्हाट द वैल्यू ऑफ a is a and the value of b 6 - a = 8. Right, we have to solve this. 6a - a² = 8. We will open this bracket and 6 into a 6a and 6a into a square, and the negative symbol remaining same. Is it clear? Now what we have to do, we will transfer both of the values in right hand side, then a will be positive, a², 6a will be negative, 6a, and 8 is already in other side, then it is 8. And here is, if we transfer both of the values in right hand side, then the value will be 0, then it is 0. Now we have an equation a² minus 6a plus 8 = 0. How we will solve this equation? We know that we can split this middle term, and by splitting middle term
how we will split this value? We know that the multiplication of outer values 8a square, and we have to split this value like the factors of this value, and the product of these factors will be 8a square, and the sum of these value will be minus 6a, right? This is the method of splitting middle term. अच्छा, इसको मैं स्प्लिट करने जा रहा हूँ ना माइनस 6a को, तो देखिए 8a स्क्वायर में चेंज करना आपको, किसको? माइनस 6a को। तो 6 के फैक्टर देखो पहले, तो 6 के फैक्टर होते हैं 6 इंटू 1, राइट? सॉरी 8 के फैक्टर देखिए, 8 का स्प्लिटिंग इसको करना है, बनाना 8 है, 8 इंटू 1 हो गया आपका, फिर हो गया 1 इंटू 8 हो गया, तो ये तो सेम मेथड हो गया। इसके अलावा मैं बात करूँ तो 4 इंटू 2 हो गया या 2 इंटू 4 हो गया, और बस दो ही मेथड है इसके यूज करने के। तो अब देखिए किनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 6 आता है, इनका आता है, मतलब एक वैल्यू अपने 4 होनी चाहिए, एक 2 होनी चाहिए। इतना तो कंफ्यूजन आपका क्लियर हो गया। अब आगे क्या करना है आपको, 4 और 2 होने, तो 6 बनाना है, वो भी किसका? माइनस का, और इनटू करने पे क्या होने चाहिए? 8 होने चाहिए प्लस के, मतलब इसको प्लस का बनाने के लिए इसको या तो दोनों के प्लस के लेने या दोनों के माइनस को लेने। फिर 8a स्क्वायर बनाना है, यहाँ पे a इसके साथ में है, तो ये लीजिए 8a स्क्वायर इनको बनाना है, या तो दोनों नेगेटिव होने चाहिए या दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। दोनों पॉजिटिव लेते हैं तो यहाँ माइनस 6a नहीं आता ना, प्लस करने पे प्लस का आ जाएगा ना, तो लाना माइनस का है तो माइनस के दोनों ले लेते। तो इसकी स्प्लिटिंग क्या होगी? a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 2a प्लस 8 इजिकल्स टू 0, राइट? We have to common a, then the value a minus 4, and we have to common minus 2, then the value is a minus 4 is equals to 0, right? Now a minus 4, then the one factor is a minus 4 and second one is a minus 2. The outer values is equals to 0. a minus 4 is equal to 0, एक बार तो इसके इज इक्वल टू में 0 रख दीजिए, एंड a minus 2 is equal to 0. तो a is equal to 4 and a is equals to 2, मतलब a की आपके पास में 2 वैल्यूज आई, a की आपके पास में 2 वैल्यूज आई। तो जब when a is equal to 4, जब a is equal to 4 है ना, तो b क्या हो जाएगी आपकी फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, देन b is equal to a की वैल्यू आप लोगों ने 4 पुट कर दी, तो 4 6 माइनस 4 2 बची, ये लीजिए, एंड व्हेन a is equals to 2, जब आप लोगों ने a को 2 लिया तो देन b is equal to क्या हो जाएगा? a की वैल्यू 2 पुट कर दी तो 6 माइनस 2 is equal to 4। तो ये लीजिए a और b की इन वैल्यूज के लिए मैट्रिक्स जो आपकी दे रखी है 2, वो दोनों इक्वल होगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। If you want to note down this, you can, otherwise I have to rough. All of you are done? Let me check question number next. What is question number 8? Question number 8 is, if आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है 2x माइनस एक्स प्लस जेड, थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर लेते हैं तो रोज 2 ही आपके ना, माइनस एक्स प्लस जेड, ये आपकी R1 है, R2 ये कॉलम 1 है। अब कॉलम 2 क्या हो गया आपका? 3x प्लस वाई एंड 2y माइनस 2p, 3y माइनस 2p। This matrix is equal to 4 minus 4 and 5 minus 3. These are two equal matrices. Find the value of x, y, z and p. We have to find the 4 values x, y, z and p. Right? Now, we know that if two matrices are equal, if two matrices are equal, then each and every element, corresponding element are also equal. ये दोनों वैल्यूज जो है आपकी दोनों मैट्रिक्सेज इक्वल है, तो इनकी ईच एंड एवरी जो आपकी
सॉरी एलिमेंट जो है आपके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट वो आपके इक्वल होंगे। ये a11 है और इसका ये a11 है, तो ये दोनों इक्वल है। इट्स मीन 2x = 4। वाई करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ इक्वल मैट्रिक्स, राइट। Then the value of x = 4/2, then x = 2। एक वैल्यू तो आ गई x की। अब फाइंड करनी है, मान लीजिए आप लोगों को ये वाला ले लीजिए, ये a11 ले लिया आपने, अब a22 ले लीजिए, या ये वाला लेना चाहो तो ये ले लो। ये किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल, मींस 3x + y = 5। सेम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ इक्वल मैट्रिक्स, राइट। What we have to do? The value of x अपने को पता है 2, तो 3 × 2 plus y = 5। It's mean आपको बच गया 6 + y = 5 and we have to find the value of y, then 5 - 6 and y = -1। Now you got two values, x = 2 and y = -1। फिर से चेक कर लीजिएगा, ये सिंबल आप लोगों के रॉन्ग हो गए तो रॉन्ग क्वेश्चन भी रॉन्ग हो जाएगा। 4 - 5 एंड -4 एंड -3, राइट। तो आपको 4 वैल्यूज फाइंड करनी थी, 2 वैल्यूज आपने फाइंड कर ली। अब थर्ड वाला एलिमेंट देखिए, -x + z = -4, राइट, बिकॉज ऑल्सो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ इक्वल मैट्रिसेस, राइट। व्हाट वी हैव टू डू? यू नो द वैल्यू ऑफ x। What is the value of x? 2। It means माइनस है तो -2 + z = -4। If we will transfer z = -4 and +2, ये नेगेटिव है तो उधर जाके प्लस का हो गया, तो z = -2 and this is the third value of your question, right? Final value p, it means 3y - 2p = -3। You know the value of y, -1, तो 3 and into -1 -2p = -3। ये आपका -3 हो गया, -3 उधर गया तो +3 में हो गया, राइट। ये -3 हुआ तो उधर जाके +3 में हुआ, -3 + 3 0 हो गए, तो -2p = 0, तो p = -3 -2 इधर आ गया तो 0 ही रहने वाला, तो p = These are the 4 values which you have to find, and you already find 1, 2, 3 and 4th values, and this is the solution of question number 8. If you want to take a screenshot right now, if you want to note down, pause the video to note it down. All of you have done? Let me rough the blackboard. Sorry, whiteboard. Last and final question, and question number is 9. What we have to do? क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें करना क्या है? सेम इसी पैटर्न पे आपका क्वेश्चन नंबर 9 चलेगा। करना वही चीज है, आपको मैट्रिसेज इक्वल दे रखी है और इक्वल मैट्रिसेज के लिए कोई भी वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए बोलेगा, वो वैल्यू आपको फाइंड करनी है। लेट मी चेक हाउ वी विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? For what values a, b and c will the matrices a, b are equal? Let matrix A आपको दे रखा है a - 2, 12c, 3b + 2 and 2c and bc, 2c and bc, right? And b = b = आपका है bc6, bc and 6, और इसके अलावा दे रखा है आपको
6BA 6BA और फाइनल हो गया 3। अच्छा, एक चीज मैंने आप लोगों को कहा था कि ये जब दोनों इक्वल मैट्रिक्सेज है तो इनका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होना चाहिए। ये 2/3 है तो ये भी 2/3 ही होनी चाहिए, तभी इक्वल होती है, नहीं तो नहीं होगी। भी आपके एलिमेंट्स तो सेम होने चाहिए ना। अच्छा, ये 2/3 है, वो 3/2 है ना, तो इक्वल मैट्रिक्स नहीं हो सकती। ये चीज आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है कि जब आप लोगों की 2 मैट्रिसेज इक्वल है ना, इट्स मीन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स विल बी रिमेन। m इंटू n की वैल्यू सेम रहनी चाहिए। 2 इंटू 3 इसकी है तो 2 इंटू 3 इसकी होनी चाहिए। 3 इंटू 2 होगा ना तो नहीं चलेगा। इज इट क्लियर? लेट वी चेक। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b एंड c व्हेन जब a इज इक्वल्स टू, जब a आपकी मैट्रिक्स b के इक्वल है। तो मैं मान लेता हूं कि ये a आपकी किसके इक्वल है? ए बी के इक्वल हो गई। अब आपके ईच एंड एवरी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने हैं, तो फर्स्ट वाला ही ले लेता हूं। मान लीजिए डायरेक्टली वैल्यू किसकी फाइंड कर सकते हो, पहले तो ये चेक करो। C एंड ये हो गया, तो C इज इक्वल टू 3। एक तो वैल्यू डायरेक्ट मिल गई आपको, राइट? 3 एंड C सिंबल सेम थे आपके, तो डायरेक्टली वैल्यू मिल गई। यहां से भी वही 3 आएगा। देखो यहां से भी निकालोगे ना तो भी 6 भाई 2C इज इक्वल टू 6, तो C इज इक्वल टू 6/2, तो वही 3 वैल्यूज की आनी। तो आपको इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। इन दोनों को आप लोगों ने इक्वल करके C की वैल्यू फाइंड कर ली, राइट? अब आप लोग किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो? यहां से चेक करो, ये वाला लास्ट वाला, BC इज इक्वल टू 3B, तो B टू B कैंसिल हो गया। या आप लोग चाहो तो B यहाँ पे लेके आ जाओ डिवाइड में, ये लीजिए, तो C इज इक्वल टू फिर से 3। इज इट क्लियर? तो C की वैल्यू आपकी 3 दे रखी है, B की वैल्यू आप लोगों को मिल जाएगी B इज इक्वल टू 3C। B यहाँ से आप लोगों को तो C की मिलेगी ना। अब इसके अलावा क्या क्या है? 12C इज इक्वल टू 6B, इसके करस्पॉन्डिंग ये है। आपके पास 6 की इसकी C की वैल्यू है, C की वैल्यू क्या है? 3, तो 12 है इंटू 3 और ये 6 इधर आके डिवाइड में हो गया, इज इक्वल टू B बच गया, तो ये 2 टाइम कैंसिल हुआ, तो 2 इंटू 3, तो ये हो गया B इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। तो C की आ गई और B की आ गई, दो वैल्यूज आपके पास में आ गई। अब A की फाइंड करनी है, तो A का तो कोई सा भी कंसेप्ट ले लो, चाहे तो ये वाला ले लो, A माइनस 2 इज इक्वल टू B, A माइनस 2 इज इक्वल टू B, B की वैल्यू 6 है, तो A माइनस 2 इज इक्वल टू 6, तो A इज इक्वल टू 6 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 8, then A is equal to 8. So both three values you have find A, B and C. The value of A is 8, the value of B is 6 and the value of C is 2. Right? This is the final question of your exercise 3.1, and here the exercise 3.1 is already cleared and complete also. Is it clear? If you want to take a screenshot of this question, you can. Now, अब देखिए जो टॉपिक चलने जा रहा है ना, दैट इज वेरी ऑल्सो इजी, बट इससे थोड़ा सा एक्सटेंड मिलेगा। भाई ये जो आपका नेक्स्ट जो 3.2 एक्सरसाइज चलने जा रहा है तो इजी, इससे भी ज्यादा इजी है, पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन तो होना है, बिकॉज इससे थोड़ा सा एक्सटेंड आपको करने जा रहे हैं, थोड़ा सा एक्सटेंड आपको मिलेगा वहां पे, तो हल्का सा कॉम्प्लिकेशन होगा। बाकी कॉम्प्लिकेशन इतना भी नहीं है कि आप लोग उसको माइंड करें। एक बार इस चीज को इजीली समझ जाओगे ना तो कोई इश्यू नहीं आएगा इस चीज का। कैसे? मान लीजिए आपको, अच्छा यहाँ पे देगा क्या, एक तो एडिशन ऑफ द मैट्रिसेस जाएगा, अच्छा मैं इस चीज को थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझाऊंगा आप लोगों को, ताकि इसमें कोई दिक्कत नहीं आए। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होगा? मान लीजिए मैट्रिक्स A है आपका, A11, A12, A21, A22, और मान लीजिए A13 था तो यहाँ भी A23, एंड मैट्रिक्स B इक्वल्स टू A11, A12, A13, A21, A22,
A 2। अच्छा यहाँ पे कोई B लेते हो आप लोग एलिमेंट B1 B2 B3 लेते हो, B B B B एंड ये मान लीजिए आपकी मैट्रिक्स है। आपको जब ऐसा बोला जाए ना कि फाइंड A प्लस बी, फाइंड A प्लस बी, तो कैसे फाइंड करोगे भाई? इसके साथ में किसको, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्लस कर दीजिए। तो A प्लस बी आपका क्या हो जाएगा, A11 प्लस A11 B11। फिर आपका इसका और इसका करस्पॉन्डिंग का हो जाएगा, तो A12 प्लस B12, राइट। और लास्ट वाला हुआ A13 प्लस B1। तो ऐसे सेम एज आप लोगों को सेम पैटर्न पे चलना है और वही आपको एडिशन करना है। इज इट क्लियर? अच्छा एग्जांपल लेके इस चीज को न्यूमेरिकली आप लोग जब सॉल्व करोगे ना, तो इसको कैसे सॉल्यूशन होगा देखिए, पर चेक करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा आप लोगों को इजीली समझ पाओगे इस चीज को कि इसका कैसा डिस्क्रिप्शन है, कैसा इसका सॉल्यूशन है। तो देखिए, let me take some of the matrices A and B. A is 2, 3, 9 and 1, and B is equals to 4, -2, 6 and 1. यहाँ पे इक्वल मैट्रिसेज की जरूरत नहीं है कि दोनों मैट्रिसेज इक्वल होनी चाहिए। यू हैव टू फाइंड A प्लस B। अब A प्लस B क्या होगा देखिए, 2 प्लस 4, इज इट क्लियर? 9 प्लस -2, 9 का करस्पॉन्डिंग ये और बीच में प्लस है तो प्लस ही रखना है, एक बार शो कर देना, फिर ब्रैकेट खोलोगे तो सिंबल चेंज। 3 प्लस करस्पॉन्डिंग आ गया आपका 6 एंड 1 प्लस करस्पॉन्डिंग आपका है 1। इज इट क्लियर? देन A प्लस B इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 6, 9 प्लस -2, तो ये 9 -2 हो गया और इसकी वैल्यू आ गई आपकी 7। 3 प्लस 6 आपका हो गया 9 एंड 1 प्लस 1 2। देन A प्लस B विल बी लाइक दैट। इज इट क्लियर? दैट इज द एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अब इसमें थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए ऐसे दे दिया जाएगा आपको 3A प्लस 2B फाइंड करिए, 3A प्लस 2B। तो ये आपका स्केलर मैट्रिक्स जो होगा, आपका जो स्केलर मल्टीप्लेक्शन जो होगा वो समझोगे ना आप लोग, तब इस चीज को समझ पाओगे। तो इसमें दो चीजें, एक बार तो आपको मल्टीप्लेक्शन है वो भी स्केलर, राइट, और उसके बाद में एडिशन है। तो ये चीज आप लोगों को जब मैं आगे समझाऊंगा इसी का डिस्क्रिप्शन, तो आप लोगों को समझ में आएगा। तब तक इतना ध्यान रखिए कि ये आपका एडिशन है, इसका मैट्रिसेज का। ये नॉर्मल एडिशन है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट आता है। कॉम्प्लिकेशन बहुत इजी है इस चीज को, लेकिन थोड़ा सा जब आप लोग स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना, तो थोड़ा सा इजीली समझ में आएगा। नाउ अब क्या करना है आपको, अब आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेज। अच्छा मैं इस चीज को आप लोगों को जनरल फॉर्म में नहीं बता के डायरेक्टली एग्जांपल लेके बताऊंगा। A इज इक्वल टू 2 4 8 6 5 2, राइट, एंड लेट B इज 4 8 2 6 1 9। ये आपकी 2 मैट्रिक्स है। अब आप लोगों को फाइंड करना है A माइनस बी या B माइनस ए, जो भी आपको फाइंड करवाया है। तो कैसे करोगे? 2 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 4, तो 2 माइनस 4। 4 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 8, तो 8 तो 4 माइनस 8। 8 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2, देन 8 माइनस 2, एंड लाइक हियर 6 माइनस 6, 5 माइनस 1 एंड 2 माइनस 1, एंड द वैल्यू of A minus B will be 2 minus 4 minus 2 minus 4 6 0 4 and minus 7. Then A minus B will be like that. Is it clear? तो ये भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, इजी है, तो आप लोग कर सकते हैं इसकी, राइट। अब चलते हैं मल्टीप्लेक्शन। स्केलर मल्टीप्लेक्शन में आपको पहले बताऊंगा, फिर मल्टीप्लेक्शन बताऊंगा, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। स्केलर मल्टीप्लेक्शन ऑफ मैट्रिसेस।
अच्छा, इस चीज को थोड़ा सा इजीली समझिएगा, इसके बाद में मल्टीप्लाई बताऊंगा ना तो आपको थोड़ा इजी वे में समझ में आएगा। देखो कैसे इस चीज को आप लोगों की इसकी डेफिनेशन है, द मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए बाय ए नॉन जीरो स्केलर n इज कॉल्ड द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ a बाय n एंड इट इज डिनोटेड बाय a। मान लीजिए कोई आपका a मैट्रिक्स है और कोई भी इसमें मान लीजिए एलिमेंट्स है, ठीक है। इसको जब आप नॉन जीरो नंबर, कोई भी नॉन जीरो नंबर जो है इससे आप लोग मल्टीप्लाई करोगे, इसने मान लिया n, मान लिया आपको n से मल्टीप्लाई करना, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे n इज, राइट। एक बार चेक करते हैं, मान लीजिए मैट्रिक्स A है -4 2 9 8 1 3 एंड इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये n हो गया ना, n इक्वल टू 3, तो आपको रिप्रेजेंटेशन इसका क्या होता है, na मींस 3a, और 3a के रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, जितने भी एलिमेंट है तो उसको 3 से आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू -4 -12, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 9 27, 3 इंटू 8 24, 3 इंटू 1 31 एंड 3 3 जा 9 एंड दिस इज 3a। वैसा ही आपको 2b दिया जाता है, 4a दिया जाता है, 9a दिया जाता है, -2a दिया जाता है, तो आई डोंट थिंक आप लोगों को स्केलर मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम होने वाली है, राइट। तो आप लोग इस चीज को इजीली सोल्व कर सकते हो। अब लास्ट एंड फाइनल ऑपरेशन बचा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन आपको दिया जाता है m, मान लीजिए आपको दिया गया कि a आपका दे दिया और b दे दिया, दोनों को आप लोगों को a इंटू बी फाइंड करना है। तो इसके लिए कैसे फाइंड करना है, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो सेशन में बात करेंगे, बट अंटिल दैट यू हैव टू रीड ऑल द डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.2। आप लोगों को मैं प्रॉपर्टीज वाला जो चैप्टर है ना वो नहीं बताऊंगा, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, जो कैंसिलेशन लॉ है, ये कुछ जो है वो आप लोग खुद फाइंड करोगे। मैं इसका लाइटली डिस्क्रिप्शन दे दूंगा क्योंकि ये मैंने 11th क्लास में बहुत अच्छे से आपको बताया, कम्युनिकेटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव क्या होता है, कैंसिलेशन लॉ क्या होता है। तो ये लोग आप लोग खुद ही लॉ देख लेना, एक बार इसका डिस्क्रिप्शन देख लेना। बाकी जो क्वेश्चंस है वो मैंने जो भी करवाए 3.1 के फिर से सोल्व करिएगा, डिस्क्रिप्शन रीड करके आइएगा। उसके बाद में अपन टॉपिक के बारे में स्टार्ट करेंगे, एग्जांपल्स लेंगे और एग्जांपल्स के बाद में आपका 3.2 है वो स्टार्ट करेंगे। एंड तब तक के लिए बी सेफ, थैंक यू। आज की वीडियो सेशन के लिए इतना ही, धन्यवाद।